بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز اینڈ ویوز وتھ حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان میں آج آپ نے دیکھا جمہوریت کس طرح ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہو گئی. جمہوریت کو کس طرح ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. جمہوریت کس طرح چند خاندانوں کے گھر کی لونڈی بن کر رہ گئی ہے. جمہوریت کا کس طرح مذاق اڑایا گیا ہے. جو جیت کر بھی ہار گئے اور ہار کر بھی جتوا دیا گیا. یہ ایک عجیب تماشا لگا ہے. آج جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، وہ زور زبر دھونس دھاندلی کے ذریعے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہے. اگرچہ ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب نے جس طرح آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی، جس طرح عمران خان صاحب نے تاریخ ساز فتح حاصل کی، عوام نے حق حکمرانی عمران خان صاحب کو دیا، نواز شریف یا مسلم لیگ نون کو نہیں دیا. یہ جمہوریت سے مذاق نہیں تو اور کیا ہے. ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب 2/3 میجورٹی لے کر گئے ہیں اور مد مقابل کو بڑے بھاری مارجن سے ہرایا ہے. 10 12 ہزار 15 ہزار کے مارجن سے ہرایا گیا ہے. 20 نشستوں میں سے 16 نشستیں عمران خان صاحب نے بھی جیتی ہیں، لیکن اس جیت کا مذاق اڑایا گیا. جمہوریت کے منہ پر تماچا مارا گیا. آج سیاسی طور پر سیاہ دن تھا. سیم وہی حرکتیں کی گئیں جو عمران خان صاحب پر جن پر تنقید کی گئی. عمران خان صاحب کی جماعت نے جس طرح اقدامات کیے، اس وقت آپ نے تنقید کی. اس وقت آپ کو آئین اور جمہوریت کی بالادستی یاد تھی، مگر اب 11 جماعتیں مل کر انہوں نے آئین اور جمہوریت کو جوتے کے نوک پر رکھ دیا. ناظرین، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی انحراف ہوا. آج مسلم لیگ کاف کے جو 10 ووٹ تھے وہ ٹیکنیکل بنیاد پر صرف آصف علی زرداری کی گیم کی وجہ سے، آصف علی زرداری کا فیس رکھنے کے لیے، اگرچہ چودھری شجاعت حسین کئی مرتبہ آصف علی زرداری کو منع کر چکے تھے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، چودھری پرویز علی کا ووٹ دیں گے، لیکن لیٹ نائٹ آصف علی زرداری جب جا رہے تھے تو آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی نواز شریف سے فون پر بات کی اور ان کی منت ترلے کیے گئے اور ان کو کہا گیا کہ خدا کے واسطے ہمیں ابھی ہمارا ساتھ دیں. تو ان کو یہ عمر کے آخری حصے میں چودھری شجاعت حسین صاحب سے جس قسم کا ایک اقدام کرایا گیا، وہ چودھری شجاعت حسین کے لیے بھی باعث شرمندگی بن سکتا ہے. چودھری شجاعت حسین نے بطور پارٹی لیڈر ڈپٹی اسپیکر کو خط لکھا اور اس میں کہا جو 10 لوگ ہیں ان کی پارٹی کے، وہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان 10 ارکان نے بشمول چودھری پرویز علی نے حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے حمزہ شہباز کے خلاف ووٹ دیا. اور جب ڈپٹی اسپیکر نے گنتی کرائی تو 186 ووٹ جو تھے وہ حمزہ شہباز کے اگینسٹ چودھری پرویز علی صاحب کے تھے، جبکہ 179 ووٹ حمزہ شہباز کے تھے. لیکن جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ دی تو چودھری شجاعت حسین صاحب کے اس خط کی بنیاد پر انہوں نے ان 10 ووٹوں کو مسترد کر دیا، جس کے بعد نمبر گیم میں حمزہ شہباز 3 نمبرز آگے تھے اور ان کو رولنگ کے مطابق سسٹین کیا گیا ایز سی ایم شپ صوبے کی. لیکن سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے 63 اس میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو پارلیمانی سربراہ ہوگا وہ اس کی ہدایت کو فالو کرنا ضروری ہے. تو پارلیمانی پارٹی کے جو پنجاب اسمبلی میں وہ ساجد صاحب ہے، ساجد چودھری صاحب ہے، لیکن ساجد چودھری صاحب نے تو ان کو حمزہ شہباز کے اگینسٹ ووٹ دینے کے لیے کہا، چودھری پرویز علی کی، لیکن چودھری شجاعت صاحب کے خط کی بنیاد پر کیا گیا. اب صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے اور معاملہ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے. لیٹ نائٹ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پر جلد سے جلد سماعت کرے گی اور اس کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ 63 کی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی ہے جس کے مطابق 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ منظرنامہ جو بنا ہے یہ اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا بلکہ مزید سیاسی انتشار پھیلے گا. کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو ان خدشات کا علم تھا. عمران خان صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ اگر ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آصف علی زرداری جب پنجاب میں آ کے بیٹھے ہیں تو وہ کوئی سیاسی طور پہ شطرنج چلیں گے، سیاسی چالیں چلیں گے. آج اس کا ہم نے نتیجہ دیکھا کہ بالآخر اینڈ ٹائم پہ آخری وقت میں پہلے تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس تاخیر سیم بالکل ویسی پوزیشن آئی جب قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ کی، لیکن اس کو ڈیلے کیا گیا. حالانکہ کل تک چودھری پرویز علی کو حکومتی حلقوں کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اجلاس ٹھیک 4 بجے شروع ہو جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا اجلاس
तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। उस वक्त शुरू हुआ जब आखिरी मरहले में मोनी सगाई असम्बली से अचानक बाहर गए और वो शुजात की रिहाइशगाह की तरफ गए, तो वहाँ से ही अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, चेम गोया शुरू हुई। फिर उसके बाद पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उन्होंने बताया हामिद मीर साहब ने कि चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कहा गया है कि काफ लीग जो वो इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान में सबसे पहले खबर चौधरी शुजात साहब के ख़त की हामिद मीर साहब ने ब्रेक की। उसके बाद फिर बाकी चैनल्स भी आहिस्ता आहिस्ता टीवी पे हमने देखा, सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गए। फिर बाद में उसको कुछ दीगर चैनल्स ने उसको काउंटर करने की कोशिश की, और लेकिन बार खबर वही दुरुस्त निकली हामिद मीर साहब की। और उसके बाद हमने देखा कि चौधरी शुजात साहब का ख़त भी मंजरनामे पे आया और हमने उस ख़त को खुद भी पढ़ा है। हम पिछले 2 दिन से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के इस वीलॉग में कि पाकिस्तान में अब इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मैंडेट का एहतराम किया जाए, आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। इमरान खान साहब ने जिस तरह ज़िमनी इलेक्शन में शानदार फतह हासिल की है, शानदार फतह ली है, उसके बाद ये हक़ की हुक्मरानी इमरान खान साहब को था। लेकिन आपको पता है कि खबरें आ गई थी कि इमरान खान साहब अगर यहाँ पे वज़ीर अपना बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब के पास एक बेहतरीन स्कोप बन जाएगा, पाकिस्तान में कौमी इलेक्शन की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन को भी इस किस्म की लॉजिक से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने बेहतरीन पोजीशन ले ली, आउट ऑफ द वे जाके नॉकआउट कर दिया, तो फिर पाकिस्तान में आम इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। लेकिन हमने देखा कि सारे खबरें तबसरे तज़िये गलत साबित हुए और इमरान खान साहब ने ही मेजॉरिटी ली। उसके बाद फिर हुक्मरानों ने कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जैसी बातें उस पर कानून में रूई ठोंक ली है। लेकिन ये बरल आवाम के साथ एक मजाक किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहले ही डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, आज भी डॉलर लंबी छलांगे लगाता रहा। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मुआशी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म के ओछे हथकंडों से पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने वोटर्स से दूर होते नजर आ रहे हैं। हमने देखा सोशल मीडिया पे इस वक्त इमरान खान साहब की फेवर में लोग अपने उस पर अपना इज़हार यकजहती कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ इदारों के बारे में भी गलत किस्म के ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो भी काबिल मुज़म्मत है, वो भी नहीं होने चाहिए। इदारे इस वक्त अगर न्यूट्रल हैं तो वो उनको न्यूट्रल ही समझा जाए। लेकिन बहरहाल ऐसा लगता है जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सारी गेम एक नई अपॉइंटमेंट तक ऐसे ही रहेगी। नई अपॉइंटमेंट तक फिलहाल पाकिस्तान को इलेक्शन सूट नहीं करते हैं। आज इमरान खान साहब ने अपने कारकुनों से मुख्तसर खिताब किया। इमरान खान साहब ने आज बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से खिताब किया। इमरान खान साहब के इस खिताब को अप्रिशिएट करना चाहिए। हालांकि कल इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो जिम्मेदार नहीं होंगे, श्रीलंका जैसे सूरत हो सकती है। लेकिन आज हमने देखा इमरान खान साहब ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में तकरीर की उन्होंने, लेकिन आवाम को एहतजाज के लिए कहा, लेकिन आवाम को साथ उन्होंने कहा कि आपने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। ये बहुत अच्छी बात थी, वरना तवक्कुआत ये थी कि इमरान खान साहब शायद बहुत बड़ी शिद्दत के साथ एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी जगह पंजाब हुकूमत की स्ट्रेटजी भी हमें नजर आई, जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, पंजाब के खासतौर पे लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, और वहाँ पर रेंजर्स की तैनाती की असम्बली भेजी गई है। और रना सनाउल्लाह साहब ने ये कंफर्म किया है कि असम्बली मौसूल होगी और सूबे जिस किस्म की रिक्वेजिशन भेजते हैं वफाक उस पर अमल दरामद का पाबंद होता है। पर लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से सूरत हाल अच्छी नज़र नहीं आ रही। आवाम में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, मुआशी अदम इस्तेकाम है, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। IMF के साथ आपकी अभी तक मुज़ाकरात को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। बिजली महंगी हो रही है, दीगर खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं, आवाम महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने हुक्मरानी सीट बचाने के लिए इसी से ओछे और गैर जमहूरी हथकंडे अपना रहे हैं, जो जिसके पाकिस्तान की सियासत पर दूरस असरात मुरतब नहीं होंगे। अभी भी वक्त है कि बैठ के इस मसले का हल निकाला जाए, मुज़ाकरात किए जाए, कोई आम इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, आवाम को फैसला करने दिया जाए। लेकिन अगर ऐसी ज़बरदस्ती धूस धांधली की बुनियाद पर लाठी गोली की सरकार पर फैसले हुए तो पाकिस्तानी कौम अब इसको तस्लीम नहीं करने वाली। तो आज सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है कि इसकी समाअत होगी। देखिए सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरह देख रही है, उसकी क्या तशरीह करेगी, डिप्टी स्पीकर की रोलिंग की
जैसे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी कासिम सोरी ने दी थी, उसको पूरी सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, दोबारा अहकाम दिए थे। अब देखें सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फ़ैसला देती है। तो उम्मीद है कि दरमियानी रास्ता कोई निकालने की कोशिश की जाए, पाकिस्तान में आम इंतखाबात के लिए ऐलान किया जाए। अगर इसमें जितनी ताख़ीर होगी उतना इसका नुकसान होगा। दूसरी तरफ हमें इत्तलात मिली है कि वफाकी हुकूमत ने कुछ बड़े फैसले करने का फैसला कर लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं। अगले 96 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। अगले 72 से 96 घंटे में इमरान खान साहब के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आ सकती है। इमरान खान साहब को नज़रबंद भी किया जा सकता है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन भी इमरान खान के गिर्द उनका जो है वो घेरा तंग कर रही है। इमरान खान साहब की जो ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अवामी राब्ता मुहिम के दौरान जो तकारीर थी उनका ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया गया है पैमरा से, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन पर खुलकर तनकीद की, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन पर बरह रास्त ज़ाती हमले किए और उनको सारे इस गेम का मास्टरमाइंड करार दिया। और 20 नशस्तों के नताइज के बाद भी इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमीशन के किरदार से मुतमईन नहीं थे और उन्होंने कहा था कि नून लीग को जितवाने की कोशिश की गई, धांधली की गई। तो उसके बाद अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पर अपना जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो देखें अगले 96 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, वफाकी हुकूमत फैसला कर रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेंजर्स तैनात कर दी गई है। और आज इमरान खान साहब की कॉल पर हम देखा पाकिस्तान के बड़े शहरों में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में, दीगर छोटे बड़े शहरों में आवाम बाहर निकले हैं, पुरअमन तौर पर उन्होंने एहतजाज की है। तो हम लाहौर में कुछ इतलात मिली है कि वहाँ पर एक विगो गाड़ी आई है और लिबर्टी के करीब फायरिंग की गई है, वहाँ पर हवाई फायरिंग की गई है। तो इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सलाउद्दीन साहब ने इसको कंफर्म किया है कि ऐसी इतलात उन तक मिली हैं, लेकिन कौन लोग थे, क्यों ऐसी हवाई फायरिंग की गई, इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की मुल्क दुश्मन अनासिर कौन थे जो वहाँ पे लिबर्टी में आपको मालूम है कि PTI अरकान आकर एहतजाज करते हैं और एहतजाज से चंद मिनट पहले वहाँ पर एक हवाई फायरिंग करना, ये एक खौफ हरास फैलाने की बात है। इस मामले की भरपूर तहकीकात की जानी चाहिए। इस सराउंडिंग्स में जितनी भी CCTV फुटेज हैं वो कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उसकी रिकॉर्डिंग अपने पास कर ली है और उसकी पूरी खोज लगाई जा रही है, छानबीन की जा रही है किसकी प्लानिंग पर कौन मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्हें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो उसको जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मैं अगले 1 से 2 दिन में आपको एक मुफस्सिल आपके लिए एक वीलॉग तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जो अभी हालिया चेयरमैन नैब तैनात हुए हैं आफ्ताब सुल्तान साहब के बारे में पूरा मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली मरतबा एक नैब के चेयरमैन है, वो एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, अगरचे इससे पहले पुलिस अफसर भी हैं। तो इससे पहले रिटायर्ड सबान को रखा गया और इसके बारे में आपको तफसील से आफ्ताब सुल्तान साहब के बारे में भी, चेयरमैन नैब के बारे में भी बताएंगे किसके कहने पर लगाया गया, क्यों लगाया गया। उम्मीद है कि आप हमारे वीलॉग को दिलचस्पी से सुनते होंगे और हमें अपनी कमेंट से, राय से, तजावीज़ से ज़रूर आगाह करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।